Assalamu alaikum students. Class 5th. Today we are going to study the last segment of this unit, unit number 1, which name is brain and the nerve. Today we will talk about sense organs. As we have already studied in the previous classes that how the sense organs help us in detecting the different things, like there are 5 sense organs in our body: eye, nose, tongue, skin, and ear. Let's talk about this external and internal structure of ear and how it helps us to listen the different sounds. You can see that you can also touch your ear, that is outer ear. The outer ear directs the sounds to the thin membrane. There is a thin membrane inside our ear. You can see that this is the canal. This is a hollow part which is going to the thin membrane, which is called eardrum. Eardrum is very sensitive. It detects the sound vibrations and then it passes on to the inner ear. This part is called inner ear. Here you can see that nerves. These are nerves which are called auditory nerves, which carry the sensation or the messages to the brain. And then from brain, there are nerves which carry back the messages here and tell us that which sound we are listening. You know that those nerves which carry the messages to the brain, they are called sensory nerves, and those messages which are carrying back the messages from brain, they are called motor nerves. So the sounds vibrate this inner ear, which is very sensitive to the sound vibrations, and then nerves carry those messages. Which sound is it? Then we can detect the sounds. Now we will come across to the next sense organ, that is tongue. Here I have mentioned the different taste on the tongue. Actually, there are taste buds. You can see that I have also mentioned the taste. The tip of the tongue, it feels salty taste. The sides of the tongue, they can feel sour taste, and then the back part of the tongue, bitter taste, and then behind the tip, this part, this is sensitive for sweet taste, and then umami. Umami is actually a fifth taste. The foods like pasta, meaty food, that is called umami taste. That is called umami taste. So the tongue, what tongue does? The tongue buds, these are all the taste buds. These are called the taste buds. The taste buds, आपकी जबान पे जो taste buds होते हैं, ये sensitive. They are sensitive to chemicals in the food. ये किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं? ये उस फूड के अंदर जो केमिकल्स होते हैं उनके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं. दे सेंड सिग्नल्स टू द, अब यहाँ से भी सिग्नल्स जाते हैं क्योंकि सेंस है ना, ये भी सेंस ऑर्गन है. सेंस ऑर्गन से जो नर्व्स होते हैं वो हमेशा मैसेजेस ब्रेन की तरफ लेके जाते हैं और फिर ब्रेन वापस मैसेज किसके जरिए से हमें पहुंचाता है? मोटर नर्व्स के जरिए से, कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो इस चीज का टेस्ट है. तो tongue detects different tastes which are sweet, sour, salty, bitter, and umami. Umami, what is the umami? The savory taste of the food, which is described as meaty
फूड। अब इसमें कई फूड इस तरह के आ जाते हैं, मीटी फूड जैसे फिश, सी फूड भी आ जाता है। अच्छा, टोमेटोज, डिफरेंट टाइप के फूड्स जो हैं, जो टेस्ट जो बड़े बल्कि आप उसको इस तरह से कहें, जो ब्रंच जो हम खाते हैं ना, वो यूमैमी टाइप के या स्नैक्स जो हम खाते हैं, वो यूमैमी टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। ये आई, थर्ड सेंस ऑर्गन, आई। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई भी मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, और ये इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द आई। एक्चुअली आई जो है वो जो सॉकेट्स होते हैं, स्कल, ये जो खोपड़ी होती है ना, इसके सामने वाला हिस्सा होता है, ये सॉकेट होता है, ये वाला सॉकेट, ये बोनी स्ट्रक्चर महसूस करें आप, भंवर को अपने हाथ लगाएं और गोल सा फील करें तो आपको सॉकेट सा फील होगा, ठीक है। तो वो जो सॉकेट आई, एक्चुअली दे आर सेट, ये सेट हुई भी होती है आई जो है, कहाँ पर, इन इन सॉकेट्स, द स्कल। स्कल के अंदर जो सॉकेट्स होते हैं, जो सॉकेट ये खिड़की सी बनी हुई होती है, ये इसके अंदर ही सेट हुई होती है आई। अब ये प्रोटेक्ट देखें, अब दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल। इसके भी जितना देखिए नाजुक चीज है आंख जो है, उतना ही उसकी हिफाजत का इंतजाम अल्लाह ताला ने किया है। दे आर प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स इन द स्कल। दो चीजों से प्रोटेक्ट की जाती है ये आई, एक तो बोन इन द स्कल, स्कल के अंदर जो बोन इस तरफ को होती है वो उसको प्रोटेक्ट करती है, एंड सेकंड थिंग इज आईलिड। जब आईलिड क्या है, ये जो ऊपर वाली हिस्सा है, ये स्किनी सा स्ट्रक्चर है, जब जिसके लिए आप बार बार पलक को झपकते हैं ना अपने, तो ये जो आईलिड ये आपकी आंख को कवर करता है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप आंख को झपकते हैं, तो वो ये आईलिड के जरिए से ही मुमकिन होती है। तो एक्चुअली आईलिड प्रोटेक्ट कर रही है, एंड द बोन्स ऑफ द स्किन व्हिच आर प्रोटेक्टिंग अवर आई, द टू थिंग्स, bones in the skull and the eyelids of the skin. Now the colored part of the eye is iris. You can see that this is the colored part, this is bluish grayish का color है, ठीक है, आई का। तो ये जो है iris कहलाता है, ठीक है। This part is called iris. Clear? अच्छा, pupil is a hole, is a hole in the center of the iris. ये देखें, ये पुतली जिसको हम कहते हैं उर्दू में, और इंग्लिश में प्यूपिल, ये जो है ब्लैक से कलर, ठीक है, ये आइरिस के सेंटर में मौजूद होती है। द प्यूपिल इज अ होल इन द सेंटर ऑफ द आइरिस व्हिच अलाउज लाइट टू एंटर इन द आई। जो लाइट को अलाउ करती है कि वो इसके अंदर, आई के अंदर जाए। कॉर्निया, ये ट्रांसपेरेंट हिस्सा होता है, ये देखिए ये ट्रांसपेरेंट सा हिस्सा, ये कॉर्निया कहलाता है। फ्रंट पार्ट ऑफ द, इट इज द फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स आइरिस, प्यूपिल एंड द इनर पार्ट, अंदर वाले हिस्से को ये प्रोटेक्ट करता है। कौन? कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है? कॉर्निया is a transparent front part of the eye that covers iris, pupil and the inner part. इसके अलावा एक लेंस भी होता है, पता है? ये देखिए यहाँ पे अंदर वाले स्ट्रक्चर में आपको बताया, ये लेंस, ठीक है, ये लेंस होता है। लेंस फोकसेस द पिक्चर ऑन द स्क्रीन कॉल्ड रेटिना। ये किसी भी जिस चीज को हम देख रहे हैं उसको फोकस करता है ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन कौन सी है? ये देखें, सबसे ये अंदर वाला हिस्सा जिसको हम रेटिना कहते हैं, द मोस्ट सेंसिटिव लेयर ऑफ द आई। क्लियर? तो बच्चों, आई जो है, ये देखें, ये आई कहाँ पर एनक्लोज है? ये एक बोनी सा स्ट्रक्चर है, स्कल का सॉकेट जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एनक्लोज है, and it is protected by the bones in the skull and the eyelid of the skin. बोन से भी प्रोटेक्टेड है, और ये स्किन जो ऊपर की तरफ को है, कभी आप आंख के ऊपर देखें, महसूस करें, आंख को बंद करें, तो वो स्किन जो है वो आपकी आंख को कवर कर लेती है। इट मींस दैट इट इज प्रोटेक्टिंग योर आई। फिर इसके बाद है कलर्ड पार्ट, दैट इज आइरिस। फिर ये ट्रांसपेरेंट पार्ट, दिस इज कॉल्ड कॉर्निया,
which is protecting iris, pupil and the inner part. फिर इसके बाद ये inner part इसका देख रहे हैं आप, ये लेंस है. लेंस focuses the light. Lens focuses the picture on the screen. What is the screen? This is the innermost part of the eye, which is the most sensitive. ये सबसे ज़्यादा sensitive भी होती है, आपको पता है innermost. ये देख रहे हैं आपको डिफरेंट कलर से आई का स्ट्रक्चर को जाएगी. सबसे बाहर वाली लेयर है आई की, जिसको हम स्क्लेरोटिक कहते हैं. फिर इसके बाद ये इनर एयर है, ये सॉरी मिडल कवरिंग है, मिडल लेयर है आई की, जिसको हम कोराइड कहते हैं. एक्चुअली इट इज मेड अप ऑफ ब्लड कैपिलरीज. ये जो है ना, ये आई को फूड प्रोवाइड करने की जिम्मेदार होती है, ये मिडल वाली. और फिर इसके बाद सबसे अंदर वाली लेयर, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रेटिना, जो कि पिक्चर को, लेंस जो है पिक्चर को फोकस करता है किस पर, इसी सबसे इनर मोस्ट लेयर के ऊपर, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज को देखने के काबिल होते हैं. फिर यहाँ से आपको नर्व एक जाती हुई दिखाई दे रही है. देखिए ये भी सेंस ऑर्गन है, इसका भी ताल्लुक किससे है, ब्रेन से. तो ये ऑप्टिक नर्व, जिसका ताल्लुक ऐसे है. तो जो नर्व है, जो यहाँ से जो नर्व मैसेजेस लेके जा रही है ब्रेन की तरफ कि भी हम किस चीज को देख रहे हैं, तो वो नर्व कौन है, ऑप्टिक नर्व. फिर सेंसरी नर्व के जरिए से वापस ब्रेन पैगाम भेजता है कि हम ये चीज देख रहे हैं, हमारे सामने ये फलानी चीज है. ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं हम. ये देख रहे हैं आप, नेक्स्ट सेंस ऑर्गन क्या है, स्किन. स्किन ये हमें एनेबल करता है, इट enables us to feel heat, cold, pain, pressure and touch. The skin has thousands of receptor cells. ये आप देख रहे हैं इसके अंदर कई रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं, डिफरेंट रिसेप्टर सेल्स, जो कि डिफरेंट चीजों को फील करने में मदद करते हैं. These receptors send information to the brain about the things we touch. यही रिसेप्टर सेल्स जो होते हैं ब्रेन के पास मैसेजेस देके जाते हैं कि हम किस चीज को टच कर रहे हैं. आया वो हॉट चीज है, आया वो कोल्ड चीज है, कोई यानी प्रेशर को फील करने की सलाहियत रखते हैं ये रिसेप्टर सेल जो हमारी स्किन के नीचे होते हैं. ठीक है. इसके अलावा for each type of sensation we have different receptor cell. ऐसा नहीं है कि हर चीज के लिए हमारे पास एक ही किस्म के रिसेप्टर सेल्स हैं. ये मुख्तलिफ कलर से आपको जाहिर भी किए हैं, ये सारे रिसेप्टर सेल्स हैं. कुछ जो हैं वो ब्रेन को जाहिर करते हैं, कुछ जो हैं वो कुछ जो हैं वो पेन को जाहिर करते हैं, कुछ जो हैं वो हॉटनेस को जाहिर करते हैं, कुछ जो है पेन को फील करते हैं. तो ये सारे रिसेप्टर्स हर एक चीज को महसूस करने के लिए, हर टच के लिए एक डिफरेंट जो है रिसेप्टर सेल्स होते हैं. तो बच्चों ये तो था सेंस ऑर्गन्स के लिए, और मैंने इसके बारे में जो नोट है वो आपको सेंड भी कर दिया है. कोई भी आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन कोई पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं. ठीक है, मुझसे व्हाट्सएप